हाँ. So this is H2M1. Last lecture pulley was covered. So today we will have some question from pulley. Incline मैंने बता दिया था how to take component on mg cos theta mg sin theta, वो हो गया था ना? हाँ सर हो गया. ठीक है. So one question. ये सिर्फ इसलिए है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होते हैं, दे आर द सेम क्वेश्चंस. जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. This one is 5 kg. This one is 3 kg. And then 6 kg. 6 kg. Okay. Acceleration due to gravity g is 10 meter per second square. Find in this question, find tension. पहला tension in each string. Second, acceleration of each block. क्लियर? बस इतना बताना है. कैसे करेंगे बहुत सिंपल सा है. कैसे होगा ये बताओ. इसमें you just need to assume the tension यहाँ पे you can assume T1. Is it correct? And this is T1. And this one is 2T1. Now this system is 3 plus 6. So this is 9 kg system. This system is of 9 kg. Clear है कि नहीं? Is it clear? तो वो स्ट्रिंग जो नीचे जा रहा है 6 kg में, उसको हमने अलग टेंशन क्यों माना है? वो एक ही स्ट्रिंग है ना? नहीं, बीच में 3 kg आ गया. अब नया स्ट्रिंग आ गया है ना. ये स्ट्रिंग इससे लगा है, फिर 3 kg आ गया. अरे ये किसका है यार? एको आ रहा है बहुत ज्यादा. बेटा म्यूट करो सब अपने आप को. T1 इसमें दिस इज द स्ट्रिंग. उसके बाद 3 kg आ गया. अब ये नया वाला स्ट्रिंग है. दिस इज द न्यू स्ट्रिंग. समझे? हाँ सर. अब क्या करेंगे? अब सब पे फोर्सेस बना दो. सब पे फोर्सेस क्या आएंगे? इस पे 6g डाउनवर्ड, इस पे 3g डाउनवर्ड एंड इस पे 5g डाउनवर्ड. बताओ इन विच डायरेक्शन सिस्टम विल मूव? दिस इज 9 kg, ये 9 kg का है और ये 5 kg का है. तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा ना. आया ना? हाँ सर. ठीक है. You can take them as a system. You can take both a block as a system of 9 kg. है ना? तो ये 9 kg का सिस्टम भी बना सकते हो. है कि नहीं? क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. Yes sir. तो क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम पे नेट डाउनवर्ड फोर्स इज 9g. सो 9g माइनस T1. इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम की. 9g माइनस T1 इज इक्वल्स टू 9 है. इज इट करेक्ट? फर्स्ट इक्वेशन. यस बेटा. मुझे नहीं समझा कि what do we subtract from what? बेटा this system is moving downward, so that means force of gravity is greater than T1 ना. That's why it's pulling the system हाँ downward. सर. है ना? ठीक है. Yes sir. And in this system T1 must be greater than 5g. That's why the object is going upward. So second equation is T1 minus 5g is equals to 5a. Is it correct? Clear? हाँ सर. So acceleration, when you add equation 1 and equation 2, you will get acceleration is equals to 4g by 40. Is it correct? 4g by 40. T1 will get cancelled. 9g minus 5g is equals to 4g. 9a plus 5a is equals to 14. So acceleration is coming 4g by 14. Is it correct? Yeah sir. And what is the value of T1? Yes Neha. हाँ सर. वो जो हमने एक ही सिस्टम माना है वो 9 kg वाला, तो इसके बीच में जो T2 लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. That will be internal force. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. Now we are assuming the whole system as 9 kg. तो T2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
T2 से फर्क तब पड़ेगा व्हेन यू अज्यूम 6 kg को अलग और 3 kg को अलग, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, तो क्या आ गया? T1 कितना आ गया? T1 हाउ मच? T1 कितना, जल्दी बताओ। T1 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। नहीं बताओगे? Ninety G by 14. Is it 90 G by 14? Just check it. Correct me if I'm wrong. Is it 90 G by 14? Is it correct? Yes, sir. Matching? Sure. Now if you want to calculate T2, what you can do, you can apply either equation, either on 3 kg or on 6 kg. You can apply the equation of motion. So this is 6g minus T2 on 6 kg. What will happen? T2 will be acting upward and 6g downward. So this is equals to 6 here. Clear? Now you can calculate T2. Clear hai? हाँ सर। Equation 3. So these are not the type of question. वो infinite type के हो सकते हैं. They can be infinite type, है ना? वो अलग अलग हो सकते हैं. But आपको ये पता होना चाहिए कि how to take a system, कैसे किस तरीके से quick equation बना के आप उसको solve कर सकते हैं. ठीक है? समझ में आया? Is it clear? यस सर। Sure. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते लिखने के लिए बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम. हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना है समझ में आ गया. कोई समझने में कोई, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द सॉल्यूशन यू कैन आस्क. एनी डाउट? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो थर्ड इक्वेशन कैसे है? थर्ड इक्वेशन इज सिंपल बेटा. इफ यू लुक एट द forces of 6 kg, so T2 is acting upward, 6g acting downward, so 6g minus T2 is equals to 6 है. Simple. Clear? ओके सर. चलो यस नेक्स्ट. सर. नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है? सर यस. सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग 3 kg और 6 kg को ऐड करके एक नहीं बना सकते. आप पे है, अगर आप ऐड नहीं करोगे तब भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. 5 kg को अलग बनाओ, 3 kg को अलग बनाओ, 6 kg को अलग बनाओ, तो 3 इक्वेशन आ जाएंगी अलग अलग. कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं. ठीक है? The third equation only comes when we take 3 kg and 6 kg separately, right? Yeah. Otherwise, if we take them as one system, we will have only 2 equations. Yeah, if you are taking the one system, then only you can find the T1 na, because T2 will be the internal force, and we are assuming this to be a system, so T2 value will not come. Okay, you won't be able to calculate the value of T2 because it is inside the system. So how did you get T1? Which one beta? T1. So T1 is equal to 90g upon Beta, just 14. put the value of A in any of the equation, 1 or 2. You will get the value of Okay, T1. yes sir. Yes sir, yes sir. Got it. यार इतनी मैथमेटिक्स तो एक्सपेक्टेड है आपसे, है ना? इतनी Yes, मैथमेटिक्स. actually वो था सर नेटवर्क इशू की वजह से I couldn't attend that class. बेटा नेटवर्क इशू तो बिल्कुल सही रखो, है ना? बिकॉज देयर इज अ कंपल्शन ऑफ ऑनलाइन क्लास. ऑफलाइन होगा नहीं, तो तब तक तो ये मेन जो चीजें तोड़ जाएंगी, फिर नेटवर्क ले जाएगा, है ना? ठीक है, चलो हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मास वाला रोप. मास वाला रोप कैसा होता है? सपोज इफ यू आर हैविंग अ रोप, दिस इज ऑफ मास 10 kg. The length of rope is 10 meter, and they will ask you about the tension on various points, like this point A. At point A, point B, point C, point D, and point E. How we will calculate? Neha, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? हाँ सर। How we will calculate this. एक मिनट वेट करना.
take this as 8 meter. Okay. How we will calculate? सर वो रॉड है बीच में. Yeah, this is a this is a rod of mass 10 kg. You can take it as a rope or rod of mass 10 kg, है ना? Because when we were taking the string, we were assuming that string to be massless, but now we are taking it to be a rod of mass 10 kg and length of 8 meters. So what you need to do, you just need to calculate lambda. Lambda is mass per unit length. After calculation of lambda, you can calculate the mass of any length. Suppose question कहाँ पे पूछा गया? This is अच्छा, they are equal है ना? 2 meter and 2 meter. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द टेंशन एट ए है ना, इसमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड टेंशन एट ए. फाइंड टेंशन एट ए. तो क्या करेंगे? यू कैन टेक द होल सिस्टम एज सिंगल ब्लॉक ऑफ 10 kg. कुछ करना ही नहीं है. हाईएस्ट पॉइंट पे जब पूछा जाएगा तो इस पे ऐसे करना है, सीधे लटका दो. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस मास इज ऑफ 10 kg. ठीक है. दे आर आस्किंग टी ए. टी ए इज नथिंग, दैट इज इक्वल्स टू 10 g. इज इट क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर. Sir, Yes. so we're taking the mass uniform, right? Everywhere 10 kg. Yeah. At every. Yeah. We are taking the whole system to be of 10 kg and we are taking it a point mass because they are asking the tension at the highest point. Okay. So at highest point, the entire mass will be loaded. The load of entire mass will be there. Okay. Clear? So now suppose we take at TE, so the mass won't be the same. At which Suppose we're point? taking point E. At E point, there is no mass hanging. है ना, below the E. So tension will be 0. You can assume that suppose if you are having so many people hanging on their legs, है ना, ऐसे ऐसे किसी का टांग पकड़ के लटका हुआ है ऐसा. ठीक है. अभी बताओ सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे आएगा? Person 1. 1 पहले then वाला. 2 then 3 and 4 वाले पे कोई आएगा ही नहीं, उसको सिर्फ अपने ऊपर लोड आएगा, है ना. लास्ट पॉइंट पे उसके लेग के फिट पे कोई टेंशन होगा? देयर विल बी नो टेंशन, है ना. But sir, ये थोड़ी ना एक बॉडी है ना, मतलब रॉड एक पूरा बॉडी है. Like हाँ, तो it this is is one also body body. hanging. These hanging people are also system ना. You can assume to be a system. उनको भी system मान सकते हो आप. ठीक है. Sir, so this body is not uniformly distributed. मतलब उसका mass uniformly distributed नहीं है. नहीं. The mass is uniformly distributed. Okay. That is फिर given. mass क्यों नहीं ले रहे हैं कोई भी? टेंशन 0 की ले रहा है. E पे. A पे टेंशन ना. E suppose पे. E पे टेंशन कैसे आएगा? E के नीचे कुछ लटका हुआ है क्या? नहीं है ना. आप ये बताओ, सिंपल सा सोचो. अगर आप कहीं पे सपोज इफ यू आर हैंगिंग समवेयर, अगर आपने ऐसे अपने आप को पकड़ रखा है, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोड होता है? हाथ पे होता है या लेग पे होता है? कहाँ पे होता है बताओ? हाथ पे. क्यों होता है? बिकॉज द एंटायर लोड इज ऑन योर हैंड, है ना. यही है ना, वही यहाँ पे हो रहा है. हाँ सर. ए पे सारा लोड है और ई पॉइंट जस्ट लाइक योर लेग, है ना, ये बिल्कुल आपके फीट पे. दिस इज ई एंड दिस इज ए. आप समझ में आया? हाँ समझा अभी. चलो, इसमें कुछ है ही नहीं इतना. एंड नाउ इफ क्वेश्चन आस्क टेंशन अबाउट टेंशन एट बी. अब बी पे पूछा गया है. बी पे क्या करेंगे? बी पे तो बी पे यू कैन अज्यूम, बी पे क्या होगा? यू कैन अज्यूम, अच्छा 1 2 3 4, you can distribute them in 4 equal parts. So 10 by 4, each block is of mass 10 by 4. This entire block is of 10 kg. So 1 by 4 कितना हो जाएगा? It will be 5 by 2. Is it correct? हाँ सर. 5 by 2 kg, 5 by 2 kg, 5 by 2, 5 by 2. Clear?
सो अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए बी पे, तो ये क्या कर सकते हो, ए बी ब्लॉक को ऊपर कर दो, दिस इज ए बी, है ना, तो दिस इज टेंशन टी ए तो निकाल चुके थे, और नीचे लटका कितना है, इसके नीचे कितना लटका हुआ है, 3 5/2, इज इट करेक्ट, 3 5/2, 1 2 3, 3 5/2, इज इट करेक्ट, नहीं समझा, हाँ सर। सर समझा। 5/2 kg ये ऊपर वाला, फिर ये बी टेंशन टी बी आ गया, और इसके नीचे क्या लटका हुआ है, 3 5/2 kg, करेक्ट, सर यस, हमें डायरेक्टली मतलब can't we eliminate TA? Can't we write TB directly attached to the ceiling? I'm taking this system, it's up to you how you हाँ, want to sir. draw this TB. So the load on TB is equals to the mass of this system, so that is equals to 15 g/2. So I don't understand how is it 3 into 5/2? Shouldn't it be 2 into 5? 3 into 5/2. Yeah. Beta, on TB the load of 3 blocks are there, 5/2 5/2 5/2, so it will be 3 5/2 ना, नहीं समझा, Yes. Yeah, okay. Got it. at C how the load will look like at C. So the upper block is of 5 kg, this block is of 5 kg, 5/2 plus 5/2, and lower is of 5 kg, clear, so it will look like Sir? this. Yes beta, सर 5/2 कैसे आया? 5/2 कैसे आया हाँ सर। बेटा, 10 kg के 4 टुकड़े करोगे तो 5/2 kg के आता है, हाँ समझे, इतना मुश्किल है ही नहीं जितना सोच रहे हो तुम, कि अरे बाप रे क्या हो गया, ये कुछ करा ही नहीं है मैंने, आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस रोप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, समझ में आया, सर। क्लियर है, यस सर। सो अब टीसी देख दो, टीसी कितना आएगा, सो ऊपर आ जाएगा 5 kg का सिस्टम, नीचे 5 kg का सिस्टम, सो टीसी इज इक्वल्स टू 5g, करेक्ट है, इज इट करेक्ट, हाँ सर। सर जो ऊपर वाले स्ट्रिंग पे टेंशन होगा वो TA प्लस TB आएगा ना, कहाँ पे, ऊपर वाले, पॉइंट बोलो ABC, नहीं सर जो थर्ड वाला डायग्राम हमने ड्रॉ करा है उसमें जो पहला 5 kg वाला ब्लॉक है उसके ऊपर, बेटा एक तो सिस्टम ये है दिस वन, और एक सिस्टम ये है, बताओ, हाँ सर, तो पहले वाले सिस्टम के ऊपर वाले स्ट्रिंग पे TA प्लस TB होगा ना टेंशन, TA प्लस TB होगा, अरे बेटा आप मिक्स क्यों कर रहे हो, आप 2 ब्लॉक लो ना, आप TB को हटा दो, TB अंदर आ गया, अब TB गायब हो गया, उस सिस्टम में अंदर आ गया, इंटरनल फोर्स, तो सिर्फ TA होगा टेंशन उस पे, TA लिखा ही तो है, TA ही तो लिखा है सिर्फ, है ना, हाँ सर ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो आप, ठीक है, D वाला बताओ, D वाला व्हाट विल बी D वाले के लिए, D वाला जब करोगे तो ये सिस्टम ऊपर अलग और ये सिस्टम ऊपर अलग, है ना, क्लियर, सो TA 3 इंटू में 5/2 kg, और ये कितना है TD, दिस इज 5/2 kg, ठीक है, तो TD कितना हो गया, TD इज इक्वल्स टू 5/2g, करेक्ट, इज इट करेक्ट, हाँ सर, एंड व्हाट अबाउट E पे तो कुछ है ही नहीं, E पे तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो लोड, दिस इज पॉइंट E, तो TE कितना होगा, 0 होगा ना, So in the third diagram, how is it 5 kg? बेटा दिस इन द थर्d diagram where is 5 kg, I have written 5/2 kg, No, third diagram. अच्छा this one, if you take them as a system at C point, half, so 5/2 plus 5/2 is equals to 5 kg, clear, Yes. मेहा समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, नाउ इज इट क्लियर, यस सर, चल नोट कर लो जल्दी से,
नोट नहीं करना है, बस समझ लो इसको, नोट बाद में कर लेना। एनी इशू विद द सोल्यूशन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स? कोई भी डाउट है? एनी डाउट्स? नहीं। यहाँ पे लैम्डा का यूज नहीं करना पड़ा बिकॉज मैंने आपको पार्ट करके बता दिया, पार्ट करके। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू यूज द लैम्डा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? सर यस। सर हम डी और बी में ही केवल 3 into 5/2 क्यों किया? डी और ई में ई में तो कुछ किया ही नहीं है। डी में 3 into 5/2 इसलिए किया है। बी सो बी एंड डी बेटा बी में ऊपर 5/2 था, नीचे 3 into 5/2 था इन केस ऑफ बी। क्लियर? ठीक है? कैसे 3 आ गया? बेटा 1 2 3 क्लियर? सर सी में, अच्छा हाँ ठीक है कुछ नहीं, अब समझा कि नहीं? समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने बी पे उस बी का भी ये लिया है ना? क्या? सर टीबी का, उसमें आपने बी को भी काउंट किया ना, BCD? टीबी वाले में क्या किया है? सर आपने वो 3 वैल्यूज कौन सा लिया है? बी का लिया, सी का लिया एंड डी का लिया ना? बेटा सिंपल सा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ए लोगे तो ये सिस्टम पूरा ऐसा हो गया, ठीक है? बी लोगे तो एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये ब्लॉक ये हो गया, ठीक है? सी लोगे तो आधा सिस्टम ये, आधा सिस्टम ये हो गया, ठीक है? और डी लोगे तो एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये हो गया, ठीक है? और जब ई लोगे तो नीचे कोई सिस्टम है ही नहीं लटका। समझ में आया कि नहीं? यस सर, गॉट इट। इसमें कुछ इतना कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता दो आप। वन मोर क्वेश्चन। यू आर हैविंग ए रोप, एक रोप है, रोप इज हैंगिंग, the lambda is equals to lambda naught। इस रोप का मास पर यूनिट length is given। Question is asked about this, the length of rope is L, so they are asking about tension at this point, x point, find T, find tension। ये पूछ रहा है, बता कैसे निकालेंगे। शुरू हो जाओ, नोट करो, पहले नोट करो आप। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेंसिटीज, 3 टाइप ऑफ डेंसिटी। फर्स्ट वन इज मास, फर्स्ट वन इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। दिस वन इज मास पर यूनिट लेंथ, साइन इज लैम्डा। सेकेंड वन इज एरिया मास density, then density, this is mass per unit area, sign is sigma, okay? Then comes the last one जिसको आपको पता है क्या कहते हैं, उसको डेंसिटी बोलते हो आप, that is volumetric density, volumetric density। This is mass per unit volume, sin is rho। बताओ, if you are having the density, how you will get the mass after multiplying the volume ना? ये मालूम है कि नहीं? हाँ सर। In the same way, when you multiply length with lambda, you will get the mass। In area mass density, when you multiply area with this sigma, you will get mass। सिंपल सा कंसेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। सिंपल सा है, इसका मास कितना होगा, इसका मास m मान लो, m इज इक्वल्स टू, देख लो इधर, m कितना आएगा, लैम्डा नॉट इनटू में लेंथ, लेंथ इज x, सो दिस इज द मास। तो
टेंशन कितना आएगा? व्हाट विल बी द टेंशन? lambda naught H h into First 3. T is equals to mg. So T is equals to कितना आएगा? mg lambda naught x into mg. Is it clear now? अब कर लोगे आप हाँ, ऐसे sir. क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत इजी होता है, हाँ सर बहुत इजी होता है। चलो नेक्स्ट, किसी को डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना, इस क्वेश्चन, ठीक है? कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं, इसलिए वो रटना मत कि टाइप ऑफ इस टाइप का उस टाइप का, ऐसा कुछ रहता नहीं है, कितने भी टाइप चेंज हो सकते हैं। दिस इज ऑफ 5 kg, एंगल इज 37 degree. This is of 8 kg, angle is 53 degree. Pulley is there, pulley is there. Chalo, this one is fixed. In this question, find tension in a string. Second, normal reactions. Third, acceleration of system. एक बार पहले ट्राई मारो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहले ट्राई मारो सभी लोग, मैं लिख दे रहा हूँ भाई, अदरवाइज कहोगे कि बताया नहीं। G is equals to, you can take 10 meter per second square, sin 37 degree is equals to cos 53 degree is equals to 3 by 5, sin 53 degree is equals to cos 37 degree is equals to 4 by 5. शुरू हो जाओ, अब मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान सर से। 1 मिनट। अच्छा, बताओ चाहिए, चलो देखिए कैसे करेंगे। इट्स वेरी इजी, मुश्किल नहीं है ये, बट यू जस्ट नीड टू टेक ऑल द फोर्सेस, ठीक है? देखो यहाँ पे आई विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस मैं बनाने जा रहा हूँ, बस देख लेना इसको। देखो 5G sin 37 will act in this direction, is it correct? हाँ सर। हाँ सर And 8G sin 53 degree will act in this direction, is it correct? अब बताओ। Yes sir. 5G cos 37 degree in this direction, and normal relation between them n1 will be there. Clear? In the same way, n2 will be there, n2 यहाँ पे क्या लगेगा? 8G cos 53 degree. Clear? Tension is same, T. Obvious है that 8G sin 53 degree will be greater than 5G sin 37 degree, है ना, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज मास भी ज्यादा है और एंगल भी ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? तो सिस्टम विल गो इन दिस डायरेक्शन, इज इट करेक्ट? yes sir Yes sir. नाउ वी विल नोट डाउन द वैल्यूज, पहले तो वैल्यूज नोट करके बताओ। सो n1 इज कमिंग, n1 तो साफ साफ दिख रहा है, n1 इज कमिंग कितना? 5G cos 37 degree, करेक्ट? Yes sir. n2 कितना आ रहा है? n2 is equals to 8G cos 53 degree, correct? n1 is equals to this 5G, n2 is equals to this. Is it clear? Now we will apply the dynamic equation. Dynamic equation किस पे लगाना है? पहले 8 वाले पे लगा दो, 8 वाले पे। तो 8 वाले पे in this direction force is 8G sin 53 degree minus T is equals to 8A. Is it correct? क्या ये Yes. सही है? ठीक है। हाँ sir. Then the last equation on this block, T will be more than 5G sin 37. So T minus 5G sin
37 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 है। बताओ इज इट करेक्ट और नॉट? Yeah, sir. क्लियर? कोई डाउट है? Yes, sir. सो दीज 4 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एवरीथिंग, है ना? यहाँ सब कुछ निकल जाएगा, इससे टेंशन, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग निकालेंगे नहीं, लेकिन ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. बताओ इज इट डिफिकल्ट? देखो इफ यू लुक एट द सिंगल सिस्टम पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी अलग नहीं है, F इक्वल्स टू ma लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग F इक्वल्स टू ma, हाँ या ना? ठीक है, मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में अदर देन दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma आपको और कुछ भी नहीं करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ सर. चलो इसको एक बार देख लो, 1 मिनट टू जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई सॉल्यूशन में डाउट है यू कैन आस्क। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसके बाद देखते हैं तो कितना क्लैरिटी आ गया। इसका आंसर चाहिए मुझे पूरा। 3 kg 7 kg 1 kg 1 kg find tension in each string, acceleration of each। ठीक है, जी का वैल्यू यू कैन टेक 10। शुरू हो जाओ। So the one. आंसर आया? सर 1 मिनट. इतना टाइम नहीं था बेटा। चलो 1 ही मिनट मिलेगा, करके बताओ। देखो 1 kg पे 1g is acting downward, T1 acting upward. Is it correct? And T2 between them, है ना? हाँ सर. So you want to solve them one by one, or you want to take 3 kg and 7 kg as a system? क्या करना चाहते हो? System. As a system. एज ए सिस्टम अगर करोगे तो भी हो जाएगा। इस पे क्या है, देखो ओनली द पुलिंग फोर्स इज 1 kg, है ना, इज 1 kg और एक्सेलरेशन a है, इसका भी a है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑन 1 kg 1g minus t1 is equals to 1a। सेकेंड इक्वेशन इफ यू टेक देम एज सिस्टम, सो क्या हो जाएगा? t1 is equals to, there is no other force, so t1 is equals to, net mass is 3 plus 7 a। correct? Is it correct? बोलो। so a is Sir. having, yes बेटा, सर In which 1 direction kg do we वाला take ऊपर जाएगा acceleration? ना? क्या In which direction do we take the acceleration on top? on top? हाँ, मतलब you've taken A in the rightward direction, right? yeah, rightward बेटा। 1 kg is hanging, so how is it possible that it will go in left direction? How is it possible? हाँ सर, नॉट पॉसिबल. नहीं, ये क्या जादू तो चला क्या? हैरी पॉटर देख के बैठ क्या हो गया? ये यही तो ग्रेविटी इसी पे लग सकती है ना, तो ये इसको ऐसे हाँ खींचेगा सर. ना। ठीक है, एनी डाउट? देखो 3 plus 7 into my acceleration, any doubt? so t1 is equals to 10a। if you put the value of यहाँ पे रख दोगे तो 10 है, 10a अगर यहाँ पे डालोगे so this will become 11a, so a is equals to g by 11। is it correct? t1 कितना आएगा? t1 this is 10g by 11। बोलो करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर. is it
करेक्ट? बोलो, समझा? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब T2 निकालना है। T2 तो किसी पे भी रख दो, 3 kg वाले पे लगा दो। 3 kg वाले पे क्या हो जाएगा? 3 kg वाले पे इन दिस डायरेक्शन दिस इज T2 and acceleration is a, so T2 is equals to 3a. Just put the value of a, so this is 3g by 11. Clear? Clear? यस। चलो नोट करो। नेक्स्ट, परेशान मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डाउटफुल रहो या कैसे भी रहो, नीट में आपको मेहनत से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? चलो, एनी डाउट विद दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? हो जाएंगे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट इज constraint motion. So in case of constraint motion, multiple pulleys will be there. You have to apply only one equation, one extra equation. बाकी सब तो ये लगानी है, F equals to ma वाली लगानी है, एक्स्ट्रा इक्वेशन एक लगानी है। तो देखो कैसे लगाना है। सपोज अब ये देखो, मैं जो बना रहा हूँ इसको देखना ध्यान से। ये बताओ, दिस इज अ कार्ट, ये कार्ट है, दिस कैन मूव इन ये हटा दो, सिंपल सा देखो दिस मोशन, पुली वाला जो था मैंने बताया था, पुली वाला मोशन, इसमें क्या था? एक्सेलरेशन वाज सेम। इन दिस टाइप ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज सेम। दिस इज 3 kg, दिस इज 5 kg। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन वाज सेम ना, जितने से 5 kg विल गो डाउन, बोलो, जितने से 5 kg नीचे जाएगा उतने से 3 kg ऊपर आएगा ना, आया ना? हाँ सर। So in these type of question you won't face any problem because the acceleration is same. Although this is also constrained motion. What is constrained motion? The definition of constrained motion is that a motion which, constraint का मतलब समझते हो? constraint का मतलब बोलो, जो किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, something which is dependent on some factors. Okay, a motion which is dependent on other motion. Although this one is also constrained, इसको बोल constraint की क्लास में डालते क्यों नहीं है? Because motion of 5 kg and 3 kg both are mutually dependent on each other. Okay, वो दोनों एक दूसरे के वेट पे डिपेंड करते हैं, उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, बट एक्सेलरेशन इज सेम। बट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, उसमें क्या होगा? सपोज इफ यू आर हैविंग अ पुली, ठीक है, अनदर पुली इज देयर, एक और पुली है यहाँ पे, ये आपका मास है 10 kg, ठीक है। This is the fixing of pulley. One pulley is fixed, but the second pulley is movable. This pulley is movable. This pulley is movable, है ना? Having some mass 20 kg or some other case you can take 40 kg. तो क्या होगा? This pulley will go down, है ना? This pulley will go down, so there will be some change in length. स्ट्रिंग का लेंथ कुछ चेंज हो सकता है ना, है कि नहीं? सो इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 40 kg मे बी डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? हाँ सर। इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी डिफरेंट। सो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल पुली इन विच वन पुली इज मूविंग, दिस पुली इज ऑल्सो मूविंग। क्यों? सपोज ये नीचे गया, सो स्ट्रिंग लूज होगा, है ना? स्ट्रिंग लूज होगा, ये ऊपर आएगा, स्ट्रिंग लूज होगा, तो वो स्ट्रिंग इधर भी कंज्यूम होगा, इधर भी लूज होगा, है ना? क्लियर? सो द पुली विल मूव, सो वी हैव टू सी हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है?
क्लियर है? इज इट क्लियर? Sir, could you explain this again? I didn't From which understand it point? correctly. From which point? So the loose part you said. Beta, this one, in this one the acceleration is same. In this case, this pulley is movable, this pulley is movable, so acceleration will be different. Acceleration will be different. Okay, clear? सर डिफरेंट मतलब ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा वो भी देखो, एक्सेलरेशन? हो सकता है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, समझ गए? हाँ सर. मूवेबल मतलब वो वाई डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है. हाँ, दिस पुली कैन मूव इन वाई डायरेक्शन, ऐसा. ठीक है, ओके. क्लियर? इज इट क्लियर? यस. डायरेक्शन में हो सकता है ना मूव? क्या बेटा? ये सेकंड पुली जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो सकता है ना? नहीं नहीं, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, वो सिर्फ वाई में मूव हो सकता है. ठीक है, ठीक है सर. ठीक है, चलो. अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं? वी विल सॉल्व देम बाय अ ट्रिक, वी कॉल इट टेंशन ट्रिक. उसको क्या बोलते हैं? टेंशन ट्रिक. इसका वो कैसे आता है वो आपको जरूरत नहीं करने की. सो वी विल अप्लाई टेंशन ट्रिक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ. देखो, अब आप फील Oh, could you करोगे please go to the previous slide? I missed a point. for 1 minute, है ना, जल्दी से नोट करना. How we will solve these type of question? First, you just need to feel how this will work. Suppose if you are having a cart है आपके पास, you are having a cart. This cart can move in x direction, clear? And the pulley system in this cart is like this. ऐसा गया pulley, this one, then this pulley, then this pulley, yes, like this. Okay, बताओ what will happen? Because of gravity, this m mass will go down. This m mass, this is a fixing. And in which direction the cart will move? In which direction? बताओ. If you pull the mass, Positive X. in which direction? Plus x or minus x? Plus X. Plus x. If the blocks go down, the cart will move in this direction. Is it clear? Is it clear? Clear है? Awesome. Awesome. Nice. So can you explain it again? Beta, if you pull this mass, because of this string will come in this direction, and this will pull, so this card will come in right direction. नहीं समझा? Yes. Clear? So movable कौन से हैं? वो जो दो हैं. This mass. These pulleys are attached to the cart, and this one is attached to the wall. So these pulleys are not movable, but they definitely move with the cart. Cart के साथ they will move. Okay? Okay, so. So this cart will move. This cart will move in this direction when you pull this mass in downward direction. Clear? Is it clear? Clear? Yes, sir. Now how we will apply the tension trick? The tension is T, and T. So in this pulley, the tension in x direction is 2T, and in this pulley the tension, we are taking only the direction x only. Okay, what will be the tension? This is T. So the net force will be the resultant of these two tension, but we are interested only in the x direction. So the net force acting on this pulley is T. Is it correct or not? Is it correct? जैसे इस pulley पे this direction, this T. So resultant is, what will be the resultant force? It will be T root 2. It will be T root 2 by T square plus T square. है कि नहीं? Awesome. But what will be the component along x direction? So component along x direction is T and y direction is T. Is it correct? Correct? Yes, sir. So now we are taking only the force along x direction. Clear? तो इसमें क्या करना होता है? 2T and ये T, 3T लग रहा है. क्या लग रहा है? 3T. ये सपोज Vx इधर चल रहा है और Vy स्पीड इधर चल रहा है.
इसने मूव इधर किया है कैपिटल एक्स और इसने मूव इधर किया है कैपिटल वाई। तो टेंशन ट्रिक ये कहेगा डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, डॉट प्रोडक्ट। टी क्या होता है, T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2। What we do in the dot product, we take cos theta ना, हाँ सर। T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 is equals to 0. Again T1 dot A1 plus T2 dot A2 is equals to 0. बस ये these are the tension trick equations. ठीक है। Now how we will apply? अभी सुनो तो पूरी बात सुनो, घबराओ मत, पूरी बात सुनो पहले, पूरी बात सुनो पहले, अभी घबराओ मत, देखते ही घबरा गए, इक्वेशन पढ़ा घबरा गए है ना, पूरी बात समझ तो लो पहले, ठीक है। आपका टेंशन जो भी लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, आपका टेंशन जो भी लग रहा हो, वेलोसिटी जो भी हो उनका डॉट प्रोडक्ट, टेंशन जो भी लग रहा हो, एक्सेलरेशन जो भी लग रहा हो उनका डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ वी विल अप्लाई इन दिस इक्वेशन, तो ये बताओ। एम मास पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, हाँ या ना, टेंशन ऊपर लग रहा है, हाँ हाँ सर। सर। और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, बोलो। हाँ सर। तो कितना हुआ, T डॉट ए वाई करेंगे। अभी वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या हो गया, 2T इधर, T इधर, कितना नेट फोर्स हुआ इस तरफ, 3T। हाँ सर। सो कितना हो जाएगा, 3T डॉट AX। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट। अब ये बताओ, दीज आर एंटी पैरेलल, T ऊपर AY नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, TAY माइनस। याद है कि नहीं याद है, cos 180 डिग्री -1 होता था एंड cos 0 1 होता था, याद है। हाँ सर। सो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, और 3T भी इधर है और AX भी इधर है, तो क्या लेंगे, 3T इंटू में AX। तो इक्वेशन क्या बनी, 3AX माइनस AY इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, क्लियर है। अब बताओ क्या डाउट है, हाँ बताओ, सर मुझे नहीं आ रहा है समझ। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। क्या कहा, स्टार्टिंग के थोड़ा आगे से, ये पूरा नहीं वो डायग्राम समझ आ गया, बट सर राइट साइड कॉर्नर पे जो आपने एक्सप्लेन किया वो नहीं आया बेटा। इक्वेशंस के ऊपर। ये वाला इस पुली पे, इस पुली की बात हो रही है, इस पुली की, ठीक है। इस पुली पे इस डायरेक्शन में T, इस डायरेक्शन में D, तो नेट कितना हो गया, T√2, T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर का अंडर रूट 90 डिग्री पे, याद है, T√2। क्लियर। इस T√2 का x कंपोनेंट विल बी T, y कंपोनेंट विल बी T। इस कार्ड पे राइट में लगने वाले टेंशन कितने हुए, 2T इस पे और T इस पे, यही तो हुआ। क्लियर, क्लियर है। कितने टेंशन्स है, कैन यू रिपीट। बेटा दिस 2T एंड दिस T, x डायरेक्शन की बात हो रही है सर, 2T और T। हाँ सर। नीचे ये इक्वेशन आपको याद करना है, T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2, T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2, T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो वही डॉट प्रोडक्ट करा रहा है। सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लेना है। क्लियर, हाँ सर। एंड हाँ सर वो समझा। एंड सर लेफ्ट के 3 इक्वेशंस एक और बार समझा। T डॉट AY, T ऊपर लग रहा है, AY नीचे, तो माइनस T इंटू में AY। 3T इधर लग रहा है और AX भी इस तरफ है, तो प्लस 3T इंटू में AX। क्लियर। फर्स्ट वाला बेटा T उड़ा दो यहाँ से कॉमन लेके, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर इनको एलिमिनेट कर दो कॉमन लेके तो ये बन जाएगा ना, ठीक है। हाँ सर। सर ये भी डायरेक्टली लर्न करना है। नहीं अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, परेशान मत हो, मुझे मालूम है कहाँ पे लर्न करा पाएंगे, ठीक है।
आप इतना परेशान मत हो, आपको लगा अरे बाप रे क्या आ गया है सामने, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। How did we get 3t? 3t, Yeah. बेटा this one is 2t and on the card because of this pulley the rightward force will be t, so 2t plus t is equals to 3t, Okay, sir. Thank you. ठीक है। and if you apply it on velocity, so this will be t dot vy plus 3t dot vx is equals to 0. So t dot vy, it will be minus t vy plus 3t vx 0. So equation will same equation 3 vx minus vy is equals to 0. Clear है कि नहीं? Is it clear? Is it clear? Yeah, sir. Now what about the displacement? If you apply t dot y plus 3t dot x is equals to 0. So y in is downward direction and t is in upward direction. So t minus y plus 3t into my x is equals to 0. So 3x minus y is equals to 0. Is it clear? Is it clear? बोलो क्लियर है? हाँ सर। चलो नोट डाउन दिस एंटायर इक्वेशन, जल्दी से नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इट विल डाइजेस्ट ना, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कर लो उसे नोट, अपलोड कर लेना पीडीएफ से, ठीक है। अभी देखो इसको करते कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ना, अभी देखना डिफिकल्ट है कि नहीं, अभी आपको लगेगा इजी है। Suppose if you are having a mass 5 kg, ये है, दिस वन इज 15 kg, तो इसमें क्या होगा, द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, क्लियर। अब देख लो इसको कैसे करना है, कुछ भी नहीं अलग करना है, यू कैन एज्यूम किसी को भी किधर मान लो, 15 kg का मान लिया एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड एंड इसका एक्सेलरेशन a2 अपवर्ड, ऑब्वियस है इफ दिस इज गोइंग डाउनवर्ड तो ये ऊपर ही आएगा ना, आया ना, फिर भी अगर आप गलत मानोगे यू विल गेट करेक्ट आंसर, परेशान मत हो, माइनस साइन मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. सो टेंशन T इट विल बी 2T, नथिंग एल्स, बस इतना सही, ठीक है, T एंड 2T, एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? No, sir. Okay. 5G will be acting downward, 15G will be acting downward. Any doubt? Now just tell me what will be the force equation. बताओ पहले वाले पे क्या होगा, फर्स्ट वन बताओ, कैसे लिखेंगे? 15G minus 2T is equals to 15A1. Is it correct? Yeah, sir. Second one, T upward minus 5G downward is equals to 5A2. T minus 5G is equals to 5A2. Is it correct? Hi Anna. Correct. Yeah, sir. But unknowns are 3 terms, T, A1 and A2. So and we are having only 2 equations. So one more equation is required that we will get from the constraint equation. कहाँ से मिलेगा? कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। समझ में आया कि नहीं आया? समझा? हाँ सर। अब देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, T इज एक्टिंग अपवर्ड और A2 भी अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा, T और A2 प्लस में हो जाएंगे। इज इट क्लियर? T भी ऊपर लग रहा है 5 पे और A2 भी ऊपर है, तो बताओ प्लस में हो गया,
इज इट करेक्ट? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। लास्ट में जो आपने कहा एक्सप्लेन करोगे? फ्रॉम विच पॉइंट बेटा? दिस वन? लास्ट में जो आपने कहा +t/2 बेटा t देखो यहाँ पे t ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, सेम डायरेक्शन में है, आया ना? हाँ सर। सो +ta2 क्या हो जाएगा? +ta2। इसमें क्या है? 2t इज Yes. अपवर्ड एंड a1 इज डाउनवर्ड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। सो क्या हो जाएगा? -2t into a2 is equals to 0. So equation when you eliminate t and t, you will get a1, this is a1, you will get a2 is equals to 2a1. This is the third equation. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? यस सर। हाँ बस इतना सही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? वैसे ये रेयर है इस टाइप का क्वेश्चन आपके में आए, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्योंकि डिफिकल्ट माना जाता है। बट कैसे क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे? आपसे पूरा एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछेगा, ठीक है? जैसे अगले वाले क्वेश्चन में आपसे मैं पूछूंगा वो, ठीक है? इतना किसी को डाउट है कि हाउ टू अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट इक्वेशन? इस पे कोई डाउट आ रहा है? एनी डाउट? सर -2ta1 कैसे आया? मैं उधर बेटा डिस्कनेक्ट। 2t इज एक्टिंग अपवर्ड और a1 इज इन डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आया। यहाँ पे t was acting upward, acceleration was also in upward direction, so प्लस में आया, ठीक है? ठीक है? यस सर। इसे नोट करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद आप कर लोगे इसे, ठीक है? क्वेश्चन इज सिंपल। देयर इज अ मास की कुछ बताया नहीं गया है, बट देयर आर सो मेनी पुलीज, पुली लगी हुई है। देखो देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है क्वेश्चन उतना होता नहीं है। M mass, capital M mass. If this mass is going with an acceleration a, अच्छा तो कैपिटल M वाला किधर जाएगा? In which direction? If this is going downward, बताओ किधर जाएगा? In which direction? फील क्या आ रहा है? ऊपर खींचेगा ना उसे वो, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। So इसमें बस ये पूछा जाएगा आपसे फाइंड रिलेशन। देखने बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, कितनी सारी पुली लग गई हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड कैपिटल ए, बस इतना पूछा जाएगा। देखिए कर पाते कि नहीं, करो ट्राई करो, क्या रिलेशन आ रहा है। दिस इज टी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। देखो दिस स्ट्रिंग इज सेम, ये पूरा द एंटायर स्ट्रिंग इज सेम। सो टी 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 T T T T. So T and T, 2T, T and T, 2T, T and T, 2T. Is it correct? Any doubt with the force distribution? सीलिंग पे बनाने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, है ना? बताओ कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं सर। चलो, so on capital M, net upward force is T, 2T, 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 70 upward, हाँ या ना? हाँ सर। So on this is 70 acting upward, and acceleration a is in upward direction. On M mass, T is acting upward and it is going in downward direction. So how we will apply tension trick? कितना होगा? 70 और a को plus -t and minus t into a, that is equals to 0. So a is equals to 7a. This is the answer. मतलब मुश्किल है क्या? नहीं सर।
बस ये करने को आएगा आपको, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का, आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने को आएगा, ठीक है। Sir, यस, instead of taking the thing on mass M, I took it on the ceiling. व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द फोर्स ऑन सीलिंग? Yeah, I mean, I took it instead of the mass, I took it on the ceiling, the tension force. You have shown the tension on the ceiling, na? Yeah, sir. But that is not required. Whether you write or not doesn't matter. You just need to calculate the relation. ठीक है? Calculating it on mass, I took it on the ceiling. Like the force, I took it up from the ceiling. You मतलब have मैंने taken this smart attached with the ceiling. Nice, sir, you've taken 70 from the tension on mass, right? Mass M. Yeah, capital M. I took I think 7 from the ceiling. I took 8 from the ceiling. 8 from the ceiling. Why we are taking 8? You just need to take the tension acting directly on the mass. Okay, sir. कुछ भी ये कैसे, ये तो मैंने सिखाया भी नहीं है। ये टूटी 80 कैसे ये कर दिया ना आपने? हाँ सर। ये तो मैंने सिखाया भी नहीं है, ये कहाँ से कर दिया? ये कहाँ से दिमाग में आ गया? जो टी उस पे लग रहा है उसकी बात हो रही है ना, सीलिंग से क्या मतलब है? हाँ सर। ठीक है, 2t 60 and this t 7t is acting upward and this t is acting upward, तो ये लगाना है। एनी डाउट? कोई डाउट है? जल्दी बताओ। एनी डाउट? चलो, सो आज थ्योरी यहीं पे खत्म करेंगे।